Hello students, through this video we will start a new chapter, that is biotechnology and its application. This is the chapter number 2 from the unit biotechnology, and under this chapter the first topic is biotechnological application in agriculture. Okay, so let's start our this topic. Firstly, we have three methods to improve the food production. Under these three methods, the first one is agrochemical based agriculture, organic farming, and genetically modified crop based agriculture. So under the agrochemical based agriculture, mainly chemicals are used in inorganic ways are used in the agriculture. Second one is organic farming, where we are using the organic ways to produce a crop, and third one is genetically modified crop based agriculture. So let's understand one by one. First one is here, biotechnological application in agriculture. So the first one is agrochemical. The crop production is tripled after the Green Revolution. Actually, Green Revolution is introduced by M. Swaminathan, and in this Green Revolution, the basic factor behind the Green Revolution is agrochemical based agriculture. Okay. So agrochemical based culture tripled the crop production. It was because of high yielding varieties. They are using the high yielding varieties, better management of the different ways of agriculture, and also extensive use of agrochemicals. But behind this method, there are some drawbacks. And what are that drawbacks are? Better yielding varieties are possible only when the breeders are able to induce desired variation. It means that for this process, farmers should have knowledge of this, of agrochemical based agriculture. Only then they can use different type of varieties, and only then the breeders are able to induce the desired variation. Another drawback is that agrochemicals include fertilizer and pesticides that are quite expensive. Third one is that agrochemicals are causing extensive pollution of soil, water, and food items. So agrochemical based agriculture become not so popular because it has so many drawbacks. Second one is organic farming or organic agriculture. It uses manures, biofertilizers, biopesticides, and biocontrols for enhancing the crop production. Okay, it means that under the organic agriculture, we have to use the organic ways of crop production, but the drawback is that it cannot increase the crop yield to a significant level in a little time. Okay, the crop yield is very slow as compared to the agrochemical. So this method also doesn't work for the farmers. Then the third one is genetically modified crop based agriculture. You can also say GMOs. So genetically modified organisms have been altered by manipulation of their genes instead of conventional breeding. So as we read about all these things in the last videos, that how we introduce the desired gene in the vector, then that desired gene works in the host. So this type of organisms are known as genetically modified crop organisms. Okay, so here the genes have been altered, and for this we do not depend on the conventional breeding, that पहले पेरेंट्स हैं उनमें अगर कोई कैरेक्टर दिखा तो फिर ब्रीडिंग करवाएंगे, फिर फर्स्ट जनरेशन देखेंगे. ठीक है, इस तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं थी. हम जीन पे वर्क कर रहे थे. द जीन ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनिज्म थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमने पढ़ा है उसे हम ट्रांसजीन कहेंगे. एंड द क्रॉप्स विच एक्सप्रेसेस वन और मोर ट्रांसजीन्स आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जिनमें मिलेंगी उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहेंगे. और जीन ट्रांसफर, जिसे हम अनदर ऑर्गेनिज्म को जीन ट्रांसफर करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजीन. ठीक है जी, जो जीन ट्रांसफर हो गई हैं. सो एडवांटेजेस क्या थी? दैट इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोड्यूस जीएम क्रॉप. ठीक है जी, एक तो ये था कि बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू दी जो कन्वेंशनल मेथड है ब्रीडिंग का, उससे कम टाइम लगता है इसमें. एंड एनी जीन फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सरसाइज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्रॉप एज पर द रिक्वायरमेंट. ये अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज थी, दैट वी कैन use any gene from any organism. Okay, so this is actually the introduction part of biotechnology and application. Now we have transgenic plants. So let's see plants which have genetically modified by introducing foreign gene.
through recombinant DNA technology. ठीक है, we already read about the recombinant DNA technology, that what is recombinant DNA, how we get it and how we isolate that, then how we insert that into the host. All these things we already read. Okay, so let's see. So plants which have genetically modified organisms by introducing a foreign gene through recombinant DNA technology. Okay, so these are the transgenic plants. Genetically modified plants have been useful in many ways. ठीक है, अब हम uses देखते हैं एक्चुअली कि genetically modified हम plants बनाते हैं तो उनमें कौन कौन सी modification हम करते हैं. So first one is abiotic stress resistant plant. दो तरह के factors आते हैं हमारे पास, biotic and abiotic. सो ऐसे प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड किए गए जो कि एबायोटिक स्ट्रेसेस को झेल लेते थे, टॉलरेट कर सकते थे. ठीक है जी, बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन बिलोंगिंग टू वाइल्ड रिलेटिव्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एडवर्स कंडीशंस. एग्जांपल लेते हैं कि काफ़ी हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जब उनके ऊपर एबायोटिक फैक्टर्स का स्ट्रेस पड़ता है तो कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ अच्छे से कर पाते हैं, बहुत अच्छे से. ठीक है जी, तो ऐसे ये ज़्यादातर देखा गया कि जो वाइल्ड वैरायटीज़ है, हम एग्जांपल लेते हैं टोमेटो की ही. ठीक है, टोमेटो की जो वाइल्ड वैरायटीज़ है उन्हें देखा गया है कि वो डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेसेस में भी ग्रो कर जाती हैं, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्रॉस्ट हो, सैलिनिटी हो या हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो. तो हमने क्या किया कि जो हमारी ब्रीड थी जिसे हम चाहते थे, जो स्पीशी को हम चाहते थे, उस स्पीशी में हमने उस वाइल्ड वैरायटी की जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट्स. नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ऐसे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए गए. पोस्ट हार्वेस्ट एंड ओवर राइपनिंग लॉसेज हैव बीन रिड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन दैट प्रिवेंट डिटीरियोरेशन. पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है अभी कि जैसे मान लीजिए जितने भी आप एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मस्टर्ड की फसल होती है, ठीक है, ये वीट हैं या राइस हैं, ये सारे जो हैं वो फलियों में होते हैं ना. तो जैसी वो राइपनिंग हो जाती है इनकी, तो वो खेत में ही ना फलियाँ उनकी खुल जाएं, वो झड़ ना जाएं, इसके लिए उनको ऐसी जीन में इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि जो उनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसे रिड्यूस किया गया. ठीक है, तो इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई गई. देन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसे ही हमने जीन्स को इंट्रोड्यूस किए जिससे कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करना पड़े. ऑलरेडी उनके अंदर ऐसी जीन है कि वो उनके ऊपर पेस्ट का असर नहीं होता है. ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. एनहांस मिनरल यूटिलाइजेशन, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन डेट इंक्रीज द मिनरल यूजेस फ्रॉम सॉइल डेट अल्टीमेटली रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, ऐसी जीन्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि वो ऑलरेडी जो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं और फर्टिलाइजर्स पर कम वो डिपेंडेंट है. ठीक है जी. एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू, ये भी एक देखेंगे एग्जांपल कि प्रोटीन रिच पोटैटो एंड विटामिन रिच गोल्डन राइस हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. हमने क्या किया है कि कुछ स्पीशीज़ में उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी एनहांस की है. जैसे कि जो पोटैटो हैं, इनको प्रोटीन रिच बनाया है. जनरली स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हैं पोटैटोज़. सिमिलरली जो राइस हैं उनमें विटामिन ए का सोर्स, विटामिन ए की जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया. ठीक है, जैसे कैरेट्स हैं उनमें विटामिन ए बहुत होता है, तो उसमें से विटामिन ए की जो जीन थी रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे विटामिन ए के लिए, उस जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया राइस की स्पीशी में. और राइस को हमने, राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू को और इंक्रीज़ किया है थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की, और आपको बताया गया है कि किस किस तरह के हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बना सकते हैं. और देखेंगे ज़रा भी वायरस रेजिस्टेंस प्लांट्स भी वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंडर ही आते हैं. ठीक है, ऐसे भी प्लांट्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर वायरसेस का असर नहीं होता. फॉर एग्जांपल टोबैको, टोमेटो, पोटैटो एंड राइस प्लांट्स. फार्मास्यूटिकल्स, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव बीन फाउंड टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. ऐसी बहुत सी क्रॉप्स हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जो कि नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लाइक इंसुलिन, इंटरफेरन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, हार्मोन्स, इन सबको प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जिनको हम फिर मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं. देन वी हैव इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स. बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बिन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से ये टॉक्सिन जीन ली गई. ठीक है जी, और प्लांट्स में फिर इसे एक्सप्रेस करवाया गया. ठीक है, ताकि प्लांट्स को रेजिस्टेंस मिले फ्रॉम द इंसेक्ट्स.
ये एग्जांपल इसके बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इंसेक्ट रेजिस्टेंस के हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना सकते हैं। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा वही चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम बीटी कॉटन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। ठीक है जी। कैसा है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है बीटी कॉटन। इसके ऊपर इंसेक्ट जो है वो असर नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि जो कॉटन प्लांट है उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी उसे। तो अगर हम कॉटन, ये आपके सामने प्रॉब्लम्स है, ये फुली मैच्योर कॉटन बॉल है जैसे हमें चाहिए। ठीक है। और ये 2 डिस्ट्रॉयड कॉटन बॉल्स हैं जिन्हें बॉल वॉर्म ने डिस्ट्रॉय किया है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसे हमने ख़त्म करना है। ठीक है। थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। कॉटन इज़ अटैक्ड बाय bollworm. Infected stage is caterpillar. It attacks and born into top tendrils or delicate part of the shoots, flower buds and balls. Bollworm form holes and causes premature opening, and protective spray of insecticide is quite expensive. ठीक है जी। आपके सामने सारे पॉइंट कवर कर दिए कि क्या प्रॉब्लम थी, और जो जनरल केमिकल मेथड हमारे पास प्रेजेंट था वो एक्सपेंसिव था। तो हमने किस तरह से हमारी जो क्रॉप है उसे रेजिस्टेंट बनाया है वो देखते हैं। ये जो बीटी वर्ड है ना, ठीक है, उसकी वो लिया गया बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस से, बीटी कॉटन लिखा है ना हमने। तो हमने इसमें क्या किया है कि बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस एक स्पीशी है बैक्टीरिया की, वो क्या करता था, क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। इस तरह के क्रिस्टल्स वो प्रोड्यूस करता है। इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन, सीधे क्रिस्टल तो नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन है। ठीक है जी। इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन ही है वो एक तरह के, लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जो कि किन किन को किल कर सकता है? लेपिडोप्टेरन्स, क्लियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। ठीक है जी। ये 3 तरह के जो हमारे पास, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म आते हैं। क्लियोप्टेरन्स में बीटल्स हैं। डायप्टेरन्स में फ्लाइज, मॉस्किटोज, इन सबको वो किल कर सकता था। ठीक है। सो हमने इसी का यूज़ किया है अभी। ये जो हमारा बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस है, बीटी जो है, इसका यूज़ करके हमने अपने प्लांट को बनाया है पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लेते हैं क्या है होल प्रोसेस। जो ये बैक्टीरिया है वो इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन को पैदा करता है क्रिस्टल की फॉर्म में, और ये जो क्रिस्टल्स हैं जब उनके ऊपर ये फीड करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। किस तरह से ख़त्म होते हैं वो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो खुद को इन क्रिस्टल से क्यों नहीं हार्म होता है? ठीक है। वो इसलिए नहीं हार्म होता है क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब एल्कलाइन एटमॉस्फेयर से मिलता है तब वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आंसर भी दे रखा है पूरा। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स। ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही उसे एल्कलाइन पीएच मिलता है गट का, ठीक है जी, वहाँ भी ये क्रिस्टल सॉल्बलाइज हो जाते हैं और टॉक्सिन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एंड एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्रिएट पोर्स इन मिडगट एपिथेलियल सेल। जिस भी ऑर्गेनिज्म ने फीड किया उसके ऊपर, उसके जो मिडगट है उसके एपिथेलियल सेल्स उनमें पोर कर देता है, जिससे स्वेलिंग या लाइसिस होती है, और फिर फाइनली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक है। ये एक और स्लाइड है आपके सामने, थोड़ा और इजीली आपको समझाने के लिए। देखेंगे ज़रा। एक प्रवर्ब आपने सुनी होगी, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। ठीक है। उस प्रवर्ब को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉटन प्लांट है, उसके ऊपर ये जो कॉटन बॉलवर्म है ये अटैक करता है। ठीक है जी। और मतलब कॉटन प्लांट का दुश्मन है ये। ठीक है। और कॉटन बॉलवर्म को ख़त्म कर सकता है हमारा बीटी, बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस। ठीक है जी। सो जो बीटी है वो एक्चुअली कॉटन प्लांट का फ्रेंड हो गया, क्योंकि बचा सकता है उसे। अगर ये बीटी की जीन, यही वाली जीन अगर हम अपने कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, तो ये जो कॉटन प्लांट है वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। और जब ये कॉटन बॉल में उसके ऊपर आके इनफैक्ट
उसके ऊपर आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, इस स्लाइड को भी देख लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि कौन सी जीन ऐसी रिस्पॉन्सिबल थी, वो जो कि बैक्टीरिया में रिस्पॉन्सिबल थी क्रिस्टल्स बनाने के लिए, तो वो थी क्रायोजीन। ठीक है, याद रखेंगे, क्रायोजीन इज रिस्पॉन्सिबल जीन एनकोडिंग फॉर द टॉक्सिन्स। ये हमारा बैसिलस थेरोजेनेसिस है। ठीक है जी, और क्रिस्टल्स मैंने आपको बता दिया वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और वो एक्टिवेट तभी होते हैं जब उन्हें अप्रोप्रिएट पीएच कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है, जो कि उसके अंदर जाके मिलेंगी। तो इस जीन को हमने ये जो क्रायोजीन थी बैक्टीरिया की, ठीक है जी, इसको इंट्रोड्यूस करवाया हमने अपने प्लांट में, और प्लांट पे जैसे ही इसने बॉलवॉर्म ने फिर अटैक किया तो उसके गट में वो जो जीन थी, क्रायोजीन थी, वो भी अंदर चली गई। ठीक है जी, और वहाँ जाके उसने फिर वो क्रिस्टल्स की कोडिंग की, और उन क्रिस्टल्स की वजह से ये जो बॉलवॉर्म है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हुआ और वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, ये देख लेते हैं एक और स्लाइड। ठीक है, सो क्रायोजीन को हमने कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, और क्रायोजीन की वजह से प्रोटीन्स बने इस प्लांट में। ठीक है जी, और जब ये इंसेक्ट जो है इसने कॉटन प्लांट के ऊपर अटैक किया या उसे खाने की कोशिश की, तो उसके साथ वो जो क्रिस्टल्स हैं वो भी उसके साथ अंदर चले गए। ठीक है जी, प्लांट के अंदर जो क्रिस्टल बनाने की जीन थी उसने क्रिस्टल्स फॉर्म किए, और जब उसने अटैक किया किसी इंसेक्ट ने उसके ऊपर, तो उस प्रोटीन्स के जो प्रोटीन्स थे वो भी उनके अंदर गए, और जो इंसेक्ट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, इस स्लाइड में भी देखेंगे ज़रा, वही वैसे रिपीट किया है मैंने यहाँ पे कि बैसिलस थेरोजेनेसिस जो बीटी टॉक्सिन जीन है क्राई, वो आइसोलेट की जाती है और इनकॉर्पोरेट की जाती है इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स। ठीक है जी, इनकॉर्पोरेट करवा दी जाती है, तो ये हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंट बीटी क्रॉप बन गया। और ये हम याद रखेंगे कि जो क्रायोजीन्स हैं वो प्रोटीन कोडेड बाय क्राई IAC एंड क्राई IIAB। ठीक है, ये सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड। कॉटन बॉल वॉर्म को जो रिस्पॉन्सिबल है ख़त्म करने के लिए, डेट इज़ क्राई IAC एंड क्राई IIAB। एंड इसी तरह से कॉर्न बोरर, जो कॉर्न होते हैं, जो हमारा मक्की होती है, ठीक है, मेज़ बोलते हैं जिसे, उसको ख़त्म करने के लिए IAB रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, तो ये प्रोसेस था बीटी क्रॉप बनाने का। तो बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा के उसमें हमने जो क्रिस्टल की कोडिंग थी वो वाले प्रोटीन प्लांट में बनने लगे, जिसकी वजह से जो बॉलवॉर्म थे वो से उसके अंदर वो टॉक्सिन जाने लगा, और वो टॉक्सिन्स की वजह से ये बॉलवॉर्म्स जो थे वो ख़त्म होने लगे, और इस तरह से हमारी बीटी क्रॉप बनी है। पहले हमने देखा है यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट देखा है हमने। ठीक है जी, अब एक नई टेक्निक देख रहे हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाय द टेक्निक ऑफ RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं नेमेटोड की। जो नेमेटोड्स हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन, सबके ऊपर ही वो अटैक कर सकते हैं और उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट कॉज इन्फेक्शन। जो होस्ट जो होता है उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स को रॉब कर लेते हैं, और रूट में वो एक तरह से क्रैक्स डेवलप कर देते हैं। ठीक है, क्रैक्स डेवलप करने की वजह से रूट्स में बहुत वीक हो जाती हैं और उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होने लग जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी, एक प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जो कि नेमाटोड कर रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा कि और भी प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन है इसलिए सेकेंडरी और भी प्रॉब्लम से आनी शुरू हो जाएंगी। तो उस नेमाटोड का नाम था एम इनकॉग्निटा, एम इनकॉग्निटा या मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा। मेलिडोजाइन भी कह सकते हैं, गाइन भी कह सकते हैं, मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, इनकॉग्निशिया भी इसे वैसे प्रोनाउंस करते हैं, मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया ऐसे भी बोल सकते हैं। ये पता चल गया आपको कि इन्फेक्ट करता है रूट्स को। तो ऐसे बहुत से प्लांट थे जिनमें नेमाटोड्स जो थे वो इन्फेक्शन करते थे। तो देखते हैं किस तरह से हमने क्या किया। RNA इंटरफेरेंस टेक्निक देख लेते हैं पहले।
ये जो आरएनए इंटरफेस टेक्निक है तकरीबन सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है। इस मेथड को हम सेलुलर डिफेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और वो ट्रांसक्रिप्ट करता है आगे, और जो मैसेंजर आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो आगे मैसेज करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में अभी हम डीप नहीं में जाऊंगी, अब सिर्फ कहानी सी समझ लेंगे। ठीक है कि और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हम जो आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसमें समझेंगे। ठीक है जी, तो कहानी ये थी कि हमने नेमाटोड जो है उससे जो रूट्स को वो इन्फेक्ट कर रहा था, हमने वो रूट्स बचानी थी। ठीक है जी, तो हमने जो मेथड चुना है वो चुना है सेलुलर डिफेंस, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस का। तो ये जो नेमाटोड था एक्चुअली जब वो किसी भी प्लांट के ऊपर एज अ होस्ट उसे यूज़ करता था, तो ये देखा गया कि उसका जो एमआरएनए है वो एक तरह के प्रोटीन्स बनाता है, जो प्रोटीन्स जो हैं वो उस प्लांट के लिए सही नहीं थे, जिसके ऊपर भी जो होस्ट होता था उसका, जब एनिमल है प्लांट्स हैं उसके लिए वो सही नहीं होते थे, वो प्लांट्स को ख़त्म करता था वो जो ये प्रोटीन बन रहे थे अंदर। ठीक है जी, तो साइंटिस्ट सोचा कि ये जो प्रोटीन बन रहा है ये अगर आगे एमआरएनए से ट्रांसलेट ना करे तो हम अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं। ठीक है जी, सो इस एमआरएनए को जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाए तो ये आगे ट्रांसलेट करेगा ही नहीं, और ना ही प्रोटीन बनेंगे, और ना ही हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होगा। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट ने इस एमआरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड किया इन द लेबॉर्ट्री। ठीक है, ये देखेंगे आगे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ठीक है, इसने ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, और यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो कि लैब में बनाया है उसे इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि ये सिंगल से डबल स्टैंडर्ड हो जाए। ठीक है, और डबल होने की वजह से आगे ये ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, ना ही प्रोटीन बनेगा, और ना ही हमारा जो प्लांट है फिर वो इन्फेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो नेमाटोड है वो ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन बनने की वजह से उसकी बॉडी में ये प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये साइंटिस्ट ने मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, इसको अभी हम समझेंगे पूरा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इंट्रोड्यूस थ्रू एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। ठीक है, अब देखिए कोई ना कोई वेक्टर तो चाहिए था हमें, ये तो हमें समझ में आ गया था कि ये जो जीन है जो नेमाटोड के अंदर रिस्पॉन्सिबल थी प्रोटीन बनाने के लिए, तो यहाँ से हमने इस जीन को उठाया। ठीक है जी, इस जीन को अब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे क्योंकि इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमने बनाना था। सो हमने जो जीन है उसे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ किया। यहाँ पे वेक्टर तो हमें कोई ना कोई यूज़ करने पड़ना था, तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ किया, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इंट्रोड्यूस थ्रू एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से हमने प्लांट सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है जी, ये अभी प्लांट सेल है। उस प्लांट सेल में जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है फिर वो आरएनए में वो कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे आरएनएज थर्ड टाइप जो एंजाइम है वो एज ए डाइसर वर्क करता है और इस डीएनए को स्ट्रैंड्स में काट देता है। ठीक है जी, जब ये स्ट्रैंड्स में कट गया, जब नेमाटोड इसके ऊपर एक्ट करेगा, इस प्लांट सेल के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि अभी इस प्लांट सेल में हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड डाल दिए हैं। ठीक है, जो कि इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे इसे हमने लैब में बनाया था, और इस स्टैंड को हमने प्लांट सेल में डाल दिया, और ये प्लांट सेल में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के जो पीसेस हमें दिखाई दे रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उस मैसेंजर आरएनए के, जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है जी, तो ये है मैसेंजर आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए गए, जो ये RISC कॉम्प्लेक्स है। इतना नहीं आप वैसे डिटेल में जाएंगे, आप बस इतने याद रखेंगे कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था इसको अनजिप किया गया, इसके 2 पार्ट्स बना दी गई, और ये टारगेट mRNA था और यहाँ पे जाके ये अटैच हो गया, मतलब सिंगल mRNA को डबल स्टैंडर्ड बना दिया गया, और जो mRNA था वो अब क्लीव हो गया, मतलब ये आगे जाके प्रोटीन्स नहीं बनाएगा, और यहाँ से उसका मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं होता है, और जो नेमाटोड है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं।
यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। ठीक है, हमने एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर का यूज़ किया है इसमें, याद रखेंगे, जिसमें हमने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जो उसके mRNA को की कॉम्प्लीमेंट्री थी वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई होस्ट सेल में। डीएनए में इंट्रोडक्शन उसकी इस तरह से हुई कि इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम पढ़ेंगे, सेंस एंड एंटीसेंस RNA। दीज टू RNAs बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों RNA एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो ये डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम डायसर एंड विच कट्स द इनटू शॉर्टर फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी, शॉर्टर फ्रेगमेंट्स में काट दी। नेमाटोड इंजेक्ट्स द siRNAs थ्रू इट्स टैलेट। नेमाटोड जैसे उन्हें इंजेस्ट करता है, ठीक है, नेमाटोड की जो मशीनरी है वो अनजिप कर देती है, ठीक है, उस डबल से सिंगल स्टैंडर्ड बना देती है और वो टारगेट mRNA को क्लीव कर देता है, जिससे कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यही समझाया था मैंने आपको यहाँ पे, है ना, कि ये जो mRNA था जब तक ये सिंगल रहेगा तो ट्रांसलेशन होगी और ये प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन बन जाएगा तो जो नेमाटोड है वो सर्वाइव करता रहेगा और प्लांट को हार्म करता रहेगा। ठीक है जी, तो इस mRNA के साथ हमने जो डबल स्टैंडर्ड DNA को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी जो जब उसकी बॉडी में वो इंजेस्ट करता है तो उसे सिंगल स्टैंडर्ड बना देता है और यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर ट्रांसलेट नहीं कर पाता है और ना ही प्रोटीन बनता है। और नेमाटोड जो है वो क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, ये RNA इंटरफेरेंस थी। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट की, वो हमने वैसे पहले भी पढ़ ली हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बन जाती हैं, उनका टॉलरेंस पावर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, प्रिवेंशन ऑफ अर्ली एक्सर्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं, ऑल्टरनेटिव सिस्टम टू इंडस्ट्री, डिजीज रेजिस्टेंस। ओके, डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। एक तो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हैं, जिसमें अनइंटेंडेड हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अनइंटेंशनली हम हार्म पहुंचा देते हैं कुछ अनदर ऑर्गेनिजम्स को भी। ठीक है जी, रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि जब ऐसे प्लांट्स हमने बनाए होते हैं। जीन ट्रांसफ़र टू नॉन टारगेटेड स्पीशीज़, कई बार ऐसा होता है कि नॉन टारगेटेड स्पीशीज़ में भी जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ह्यूमन हेल्थ रिस्क, जो भी उन प्लांट्स को हम लेते हैं तो हमारे लिए एलर्जीज़ या इफ़ेक्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑन, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं, तो जब ये बैक्टीरिया प्लांट में या इस तरह से वर्क करते हैं तो वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कंसर्न भी हैं हमारे पास, इसी तरह से इकोनॉमिकली भी ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी पड़ती हैं। तो ये था आपका एप्लीकेशन के टॉपिक्स जो मैंने कवर किए हैं आज। आई होप कि आपको समझ में आया हो।